So, good evening, everyone. My name is Maurya Hanspal, and today we're going to continue our session on technical analysis. So, in the previous session yesterday, we talked about the basics of technical analysis, the very crux of technical analysis. We also talked about the difference between technical analysis and fundamental analysis. Also, we talked about the difference between trading and investment. So, in technical analysis, we talked about some of the behavioral aspects or the psychological aspects, right? The technical analysis done by me, it can be different from the technical analysis done by you or some third person. So, technical analysis involves some behavioral aspects, some psychological aspects or assumptions as well, as we talked in the previous session. The resistance for one person can be different as compared to some other person. Similarly, the support levels of the market can be different from like a single person to the other person. So all these terms we talked about in the previous session that मतलब कि ये अपना resistance क्या होता है and support level क्या होता है and technical analysis क्या है and basic assumptions and psychologies क्या है. So all these things we talked about in the previous session. So if you people recall, हमने बात करी थी ये behavioral finance की. In that, we talked about the storification bias, endowment effect, survivorship, the loss aversion, the self attribution, confirmation, bandwagon, and recency effect. So, all these things we tried to complete in the previous session. Also, we stopped on the efficient market hypothesis, EMH, in which we talked about the weak form of the market. Then हमने बात करी थी the semi strong of the market, एंड उसके बाद हमने बात करी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट और द परफेक्ट फॉर्म ऑफ मार्केट जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती. सो कमिंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, इट इज द एलियट वेव थ्योरी कॉन्सेप्ट. ओके, so what does this concept tell you? This concept tells you about two kinds of waves in the stock market. One is the impulse waves and the other is the corrective waves. And ये जो waves हैं, these are nothing but the pattern of the market. If I stop presenting my screen and I show you the market, so we talked about these trend patterns, right? This line chart, right? We talked about. So these are a kind of waves in the market. Sometimes the wave is rising, then falling, and then rising, and then falling. देखो, बिल्कुल simple है. Similarly, a kind of a figure I have taken in this case. Just imagine that this is the pattern of market, right? It is rising, then falling. It is rising, then falling, then rising, and then falling, right? So, when we talk about the first kind of waves, impulse waves, these are generally in the same direction. That is, if the market is rising, the waves would tend to rise as well. मतलब एक similar direction में market चल रही है. The market is rising on a similar pace, एक ही direction में, right? And generally, according to this theory, Elliott wave theory. So this person Elliott, he said generally these waves are five in nature. But in real life, मुझे आप सब बताओ, is it possible कि five ही होंगी? No. And this number can differ as well. That is why I touched upon the concept of behavioral finance in the previous session. Your assumptions, your psychologies, your ideologies, or your background can differ from one person to the other. According to this person, the waves can be five in nature. Similarly, when we talked about the corrective waves, these corrective waves are quite synonymous to the terms of market correction. A market correction का मतलब क्या होता है? When a market is rising towards a certain extent, कि market बढ़ती जा रही है, a certain point will come when the market would start to correct or the market would start to fall, as is happening from the previous last 3 to 4 weeks. Market crossed the levels of 60,000 and 60,100, 200, and from there it started to correct. That is, it started to fall. 60,000 पे आई, 59 पे आई, 58 पे आई, and now it is around like 57,000. Okay, so that is nothing but the corrective waves. According to this person, he said these waves are three in a trend, but in real life, this three number might differ, right? And this number will only differ only because of your backgrounds or your psychologies or behavioral finances or assumptions that we talked about in the previous session. Okay.
The next theory is a very popular theory. It is the Dow theory or the Dow Jones theory. So basically this theory tells you about the three phases in the market. So before talking about the three phases in the market, this theory tells you and it believes that the market is perfect, right? And by the perfect market, I believe strong form of market, that every information is available in the market, be it the past information or the historical information, your public information, or maybe the private information which is kept by the companies. So all these kind of information is available with you in the market. Also, your portfolio and your stocks, they cannot outperform the benchmark, निफ्टी हो या सेंसेक्स हो. निफ्टी सेंसेक्स अगर 20% का रिटर्न दे रहे हैं या 15% का रिटर्न दे रहे हैं, तो तुम्हारे स्टॉक्स एंड पोर्टफोलियो का भी रिटर्न विल बी 15% ओनली. It cannot go beyond like it cannot go beyond like 15%, be it 16 or 17. It cannot fall below 15%, be it your 14 or 13. So it basically says the market is perfect, a strong form of competition exists, and your portfolio cannot outperform the strong form of market. So basically, this theory, it divides the market into three phases. First one is the accumulation phase, then you have the markup phase, and the third is the distribution phase. Let's try to understand this in very brief and in the simplest manner. अब देखो, ये तुम्हारा मार्केट का चार्ट है मान लो, ठीक है, बी इट निफ्टी और सेंसेक्स और बी इट द स्टॉक ऑफ एनी कंपनी दैट यू लाइक. मार्केट गिरनी स्टार्ट हुई यहाँ पे, देखो, लाइक द मार्केट इज फॉलिंग. व्हेन द मार्केट स्टार्ट्स टू फॉल एंड इट रीचेस अ पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन, मतलब इट इज एट अ प्राइस, बहुत ही लो प्राइस पे चल रही है, as we had in the phase of COVID-19 in early March 2019, March, April, May के time. Okay. At that time, when the price is low, people start to buy. Okay. So the Dow Jones theory indicates a buying signal at that time. Buying can be synonymous with accumulation of shares. Price कम है, तुम shares खरीदना start कर देते हो. Okay. Then after a certain period of time, the price of shares rises, which is the markup phase. मतलब शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है, द शेयर प्राइस इज बीइंग मार्क्ड अप. ओके, शेयर प्राइस बढ़ता जा रहा है. नाउ अ टाइम विल कम जब प्राइसेस इतने हाई हो जाएंगे एंड वैल्यूएशंस इतनी हाई हो जाएंगी, क्योंकि एक्यूमुलेशन फेज इज द लोअर वैल्यूएशन फेज और द लोअर प्राइस फेज. मार्कअप फेज को हम बोलते हैं कि शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, दे काइंड ऑफ रीच टुवर्ड्स अ सिचुएशन ऑफ अ बैलेंस और अ फेयर वैल्यू. But when you reach to the phase of distribution, the prices is so high and the valuations are so high that people are panicked and they start to sell, right? And that phase is called the distribution phase. And इसके बाद तुम देख सकते हो, when people start to sell in the market, because when people buy, the price rises, because more the demand and more the price. And when people start to sell, the price falls, because the bears are more active here. Here we had the bulls phase. The accumulation phase can also be talked as the bulls phase, and the distribution phase can also be meant synonymous with the bear phase. कि अब मार्केट बहुत हाई हो गई है एंड लोगों को अब डर लग रहा है कि द मार्केट कैन फॉल, सो दे स्टार्ट टू सेल. मार्केट गिरेगी नहीं. हाँ, एंड ऐसा कहीं बुक्स में लिखा नहीं है कि अगर मार्केट कम है एंड मार्केट रीचेस एट अ टॉप, मान लो अगर मार्केट इज गोइंग एट 8,000 rupees, and from there the market goes to around like 16,000 or 17,000 or 18,000, तो यहाँ कहीं नहीं लिखा, किसी भी बुक में नहीं लिखा अगर मार्केट टॉप पे पहुंच गई तो मार्केट गिरेगी. इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर साइकोलॉजी, आर बिहेवियरल फाइनेंस, कि हमको लगता है मार्केट अब बहुत टॉप पे पहुंच गई है, ठीक है, अब बहुत रिस्क है तो शेयर्स बेच दो. अगर लोग शेयर्स नहीं बेचेंगे तो मार्केट वुड स्टिल राइज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फेज वुड नेवर कम. ओके, सो दैट इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन आवर साइकोलॉजी कि हम कब शेयर्स को खरीदते हैं, कब बेचते हैं. एंड द डिस्ट्रीब्यूशन फेज ना, ज्यादातर पीपल गेट इन्फ्लुएंस बाय द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो मार्केट में बाहर से पैसा डालते हैं इंडिया की, एंड दे स्टार्ट टू सेल. देन बड़े बड़े लोग इन द मार्केट, बी इट लाइक राकेश झुनझुनवाला जी और सब अदर बिग इन्वेस्टर्स, दे स्टार्ट टू सेल देयर स्टॉक्स. उनको देखते देखते लोग भी बेचना स्टार्ट कर देते हैं. So these big investors, big qualified investors or foreign institutional investors, they tend to play a great role in the distribution phase.
ओके तो अगर किसी की आइडियोलॉजी ऐसी होगी कि मार्केट में खरीदना ही खरीदना है, मार्केट को ऊपर ले जाना ही ले जाना है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज कभी आएगा ही नहीं. बट in real life it is not possible because at a certain point of time people start to panic. लोग बोलते हैं मार्केट बहुत हाई पहुंच गई है एंड अब बेचना स्टार्ट कर दो, एंड दे स्टार्ट टू रीप द प्रॉफिट. ओके, and reaping the profit is called the profit taking, and profit taking is different from panic selling. Okay, in profit taking you are selling a certain amount of your shares कि थोड़ा बहुत हम प्रॉफिट ले लेते हैं. बट पैनिक सेलिंग इज समथिंग सारी शेयर्स तुम बेचते जा रहे हो एंड द मार्केट गोज ऑन अ क्रैश. ओके, ओमिक्रॉन या फिर कोविड-19 वाले सीन में so we can call it as a panic selling. Okay, because people started to offload their shares or sell their shares, and a certain negative views, मान लो a rise in the interest rates. ठीक है, because the rise in the interest rates have an inverse relationship with the equity. बिकॉज अगर बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा तो लोग अपना मार्केट से पैसा निकाल के they'll start buying the bonds because bonds पे they'll get a higher rate of interest. तो फिर मार्केट फिर नीचे हो जाएगी एंड बॉन्ड की मार्केट ऊपर हो जाएगी. सो दैट माइट बी कॉल्ड एज अ प्रॉफिट टेकिंग बिकॉज तब मार्केट में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता. बट अगर कोई नेचुरल कैलामिटी या फिर कंसर्न या फिर कोविड जैसा कोई पैंडेमिक आ जाए, in that case the market can fall through a large correction, and at that time people do panic selling. Okay, so now let's talk about a few of the indicators. And trend analysis की बात हमने like previous session में करी थी, and we talked about the resistance and momentum of the market. And momentum से मेरा मतलब है अगर मार्केट मान लो कि 2020 से अभी तक बढ़ रही है तो these indicators tell you कि आगे भी मार्केट बढ़ेगी या फिर गिर जाएगी, राइट? एक मोमेंटम का सिंपल मीनिंग क्या होता है? इफ समथिंग इज मूविंग विद द सेम पेस, क्या उसी सेम पेस पे वो चीज आगे चलेगी या फिर नहीं चलेगी? सेम विद मार्केट. सो दीज मोमेंटम इंडिकेटर्स टेल यू क्या मार्केट उसी सेम पेस पर चलेगी या फिर नहीं चलेगी. So these are just a few of the indicators we are talking about. There are hundreds of indicators used by people in the market, but we'll talk about the most famous indicators. Okay. तो अगर हम पहले भी start with the second one, be it your like moving average, convergence, divergence. Moving average, convergence, divergence. इसको we also call it as MACD analysis. Okay. So इसमें क्या होता है? Let's go to the chart first. वहां से you'll understand. Okay. So this is the trading view. Now, if you want to add a certain indicator, you have this option of indicator here. Okay. Let's go on in the indicator. Just type here MACD. So you will get this MACD. So click on this MACD. So once you click on this MACD, you'll get this indicator below. Okay. I'll just zoom it for you also. Yeah. You'll get this indicator, the MACD. Okay. It says 12, 26, 9, EMA, EMA. So क्या होता है? See, MACD indicator helps to create a buying signal or a selling signal. ठीक है. अगर तुम इस इंडिकेटर को समझोगे तो इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि कब शेयर्स को खरीदना है या कब शेयर्स को बेचना है. ओके, यू कैन सी दिस ऑरेंज लाइन. दिस ऑरेंज लाइन इज नथिंग बट द सिग्नल लाइन. ओके, and this signal line is nothing but your 9 days moving average, which is 9 EMA, 9 days exponential moving average. 9 को you can change it as 10, 12, 15, 20, 30 and जो भी तुम्हारा मन करे. That is again on behavioral finance. But mostly technical analysts take it as 9. And this blue line is called the MACD line. That is moving average convergence divergence. दो अब हमारे पास टाइम नहीं है कि हम कैलकुलेशन करें. ओके, बट हमारे पास जितना भी टाइम है आई ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो द ऑरेंज लाइन इज द सिग्नल लाइन, द 9-day मूविंग एवरेज, एंड योर ब्लू लाइन इज द MACD लाइन, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लाइन. अब ये लाइन कैसे आती है? दिस लाइन इज ऑब्टेन्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन द 12-day मूविंग एवरेज and the 26-day moving average. यहाँ पे लिखा हुआ है 12 and 26. मतलब तुम 12-day moving average में से 26 day की moving average को subtract करते हो.
अब मूविंग एवरेज कैसे निकालते हैं? दैट इज सिंपलर, दैट इज द सिंपल एवरेज कि तुम 12 दिन के स्टॉक प्राइसेस के एवरेज निकाल रहे हो, फिर तुम 26 दिन के स्टॉक प्राइसेस की एवरेज निकाल रहे हो, तो तुम्हारे पास जो दो प्राइसेस की एवरेज है उन दोनों को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो 12 में से 26 की. ओके, सो लाइक दिस लाइन गेट्स प्लॉटेड. नाउ इफ दिस ब्लू लाइन, इफ द MACD लाइन कट्स द सिग्नल लाइन फ्रॉम अबव, अगर ऊपर से ये लाइन कट कर रही है दिस ऑरेंज लाइन को, इट इज अ बाइंग सिग्नल एंड यू शुड बाय द स्टॉक. ठीक है, जैसे देखो यहाँ पर इट इज कटिंग, बट इफ दिस ब्लू लाइन इज कटिंग द ऑरेंज लाइन फ्रॉम बिलो, जैसे यहाँ पे, इट इज अ सेल सिग्नल. ठीक है, मतलब अगर ब्लू लाइन येलो लाइन को अगर ऊपर से कट कर रही है इट्स अ बाइंग सिग्नल, अगर ब्लू लाइन येलो लाइन को नीचे से कट कर रही है इट्स अ सेलिंग सिग्नल. एंड योर डिफरेंस बिटवीन द लाइन दैट इज द सिग्नल लाइन एंड MACD लाइन का डिफरेंस में यू पीपल गेट द हिस्टोग्राम्स. The difference between the MACD line and the signal line is the histograms. यहाँ पे तुम देख सकते हो नीचे. तो जैसे तुम ग्रीन देखोगे, सो ग्रीन हिस्टोग्राम्स आर द बुलिश हिस्टोग्राम्स एंड द रेड वन आर द बेयरिश. मतलब यहाँ पे ज्यादा खरीद करी गई है, मतलब लाइक पीपल हैव बॉट द स्टॉक एंड तुम देख सकते हो when this blue line is cutting this yellow line from above, people are buying this stock, right? And green means bullish. And जब नीचे से कट करी गई है it means people are selling the stock, right? यहाँ पे and it is getting red. And higher this green line, higher this green bars, it means higher buying. मतलब यहाँ पे बाइंग ज्यादा करी गई है, बट यहाँ पर जो ग्रीन बार्स है कम है, मतलब यहाँ पर बाइंग कम करी गई है. यहाँ पे ज्यादा बेचा गया है, लार्जर रेड बार्स, एंड यहाँ पर कम बेचा गया है. So along with seeing कि it's a buying signal or a selling signal, you should also see कि volume कितनी है. Okay, if a buying signal is accompanied with a higher volume, it is the best practice to buy. But अगर कम volume है, then थोड़ा सोच के चलना. Okay, so that is your moving average, convergence, divergence. Then you have this stochastic oscillators. Stochastic oscillators is again a momentum indicator. इसमें बोला है कि अगर इसकी वैल्यू आ रही है 80 से ज्यादा इसकी वैल्यू आ रही है, इट मीन्स द मार्केट इज ओवर बॉट, मतलब बहुत ज्यादा खरीद हो गई है. पीपल आर बाइंग एंड इट इज टाइम टू सेल. बहुत ज्यादा लोगों ने खरीद लिए शेयर्स एंड अब मार्केट में शेयर्स को बेचने का टाइम आ गया. बट अगर 20 से नीचे आ रही है वैल्यू, इसका मतलब है कि बहुत लोगों ने शेयर्स बेच दिए हैं, अब मार्केट में खरीदने का टाइम आ गया. द मार्केट इज ओवर सोल्ड, बहुत बिक्री हो गई है एंड अब खरीदने का. कैसे करते हैं प्लॉट? गोइंग बैक, go to these indicators. Here you people can type as stochastic. So when you type as stochastic, you have the stochastic here. Okay, once you click on stochastic, you have these graphs. अब देखो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है. We have the shares of Reliance. Value you can see it as above 80 की वैल्यू आ रही है, almost 95, 99, ज्यादा वैल्यू आ रही है. It means at this time we can say that the market is overbought and Reliance के शेयर्स को बेचने का टाइम आ गया, अगर हम लास्ट में देखें यहाँ पे. बट अगर हम यहाँ देखें पहले थोड़ा सा अराउंड 2015 2 मार्च को, ये वैल्यू आ रही है नीचे 20 के पास. इसका मतलब है अब शेयर्स हमने बहुत बेच दिए हैं एंड अब शेयर्स को खरीदने का टाइम है. एंड कॉमन सेंस से तुम देख भी सकते हो यहाँ पे शेयर्स बेचे हैं, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू बाय, इसलिए दिस ग्राफ हैज गॉन अप. एंड दिस ब्लू लाइन इज ऑल्सो कटिंग द लाइन फ्रॉम अबव, बिकॉज यहाँ पे कम था एंड अब प्राइस बढ़ता जा रहा है बिकॉज पीपल आर बाइंग इट. सिंपल लॉजिक ऑफ stochastic oscillators. Similarly, we have the RSI, okay, the relative strength index. This RSI, the relative strength index. इसमें भी बोलते हैं अगर 70 से वैल्यू ज्यादा है, द मार्केट इज ओवरबॉट एंड अब बेचने का टाइम आ गया. अगर 30 से वैल्यू कम है, मार्केट इज ओवरसोल्ड, अब खरीदने का टाइम आ गया. ठीक है. सिमिलरली यू पीपल कैन प्लॉट द RSI ऑल्सो. अगर मैं यहाँ पे लिखूं RSI, हाँ ये वैल्यूज आ गई यहाँ पे. अब वैल्यू 75 की आ रही है, इट मीन्स
अब बेचने का टाइम आ गया है, हमने बहुत खरीद लिया। एंड अगर हम यहाँ देखें इन 1997 के अराउंड इट वाज अराउंड 25 30 के अराउंड, इट मीन्स अब खरीदने का टाइम आ गया है, हमने मार्केट को बहुत बेच दिया। सो दिस वैल्यूज लाइक यू शुड नो इन माइंड, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल टू यू। ओके, अब तुम बोलोगे ये वैल्यू जो है 80 ही क्यों है, 20 ही क्यों है, 70 ही क्यों है? अगेन बिहेवियरल फाइनेंस। कुछ लोग इस वैल्यू को 90 मानते हैं, कुछ इस वैल्यू को 10 मान लेते हैं, कुछ इस वैल्यू को 70 के बजाय 65 मानते हैं, कुछ 30 के बजाय 35 मानते हैं। सो इट इज ऑल अपॉन यू। ओके, सो देन वी हैव द विलियम्स रेंज। ये जो तुम्हारा जो मूविंग एवरेज क्रॉसओवर है, अभी के लिए इट इज ऑलमोस्ट सेम एज द मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ओके, so talking about the Williams range, it says if the value is less than -20, the market is overbought, मतलब अब बेचने का टाइम आ गया। And if the market is less than -80, it is oversold, मतलब अब खरीदने का टाइम आ गया। तो अगर तुम वापस जाओ इंडिकेटर्स में, यू टाइप विलियम्स रेंज, विलियम, यहाँ देखो। अब ये जो वैल्यूज आ रही है तुम्हारी -40 के करीब आ रही है, राइट? इट मीन्स द मार्केट इज गेटिंग ओवरसोल्ड। एंड यहाँ पर -80 के करीब जो वैल्यूज आएंगी यहाँ पे, इट मीन्स द मार्केट इज ओवरबॉट। ओके, अगेन ये वैल्यूज आर अगेन बेस्ड ऑन बिहेवियरल फाइनेंस, ठीक है? एंड इसमें ज्यादा अपना दिमाग मत लगाना कि कैलकुलेशन कैसे करनी है प्रैक्टिकली। ऑल दोज कैलकुलेशंस आर अवेलेबल फॉर यू ऑन गूगल एंड वेरियस बुक्स, बट आजकल कैलकुलेशंस की नीड नहीं होती, again because these platforms are available to you. You can just type the indicator and you can choose the stock. Okay, then the Bollinger Band मैं ड्रॉ करके बताता हूँ, that would be more feasible. Indicators में let's type Bollinger Band. जब क्लिक करा, so this is a Bollinger Band. अब इसमें क्या है? You can see an upper blue line, right, and a below blue line, and बीच में you have this orange average बीच में. Okay, तो अगर आपके शेयर का प्राइस जो इस ट्रेंड लाइन से दिख रहा है या फिर इस लाइन चार्ट से दिख रहा है, इफ इट इज क्लोज टू द अपर स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब यहाँ देखो, या तो स्टैंडर्ड डेविएशन को थोड़ा सा ब्रीच कर रहा है या फिर उसके साथ साथ चल रहा है, इट मीन्स इट इज ओवरबॉट। अब बहुत शेयर्स खरीद ले हैं एंड अब बेचने का टाइम आ गया। बट अगर आपका शेयर प्राइस इस लोअर बैंड पे है, दैट इज द लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन, ये लोअर स्टैंडर्ड डेविएशन को भी थोड़ा सा ब्रीच कर रहा है यहाँ पे, इट मीन्स इट इज टाइम टू बाय। अब तुमने बहुत शेयर्स को बेच दिया, अब शेयर्स को खरीदने का टाइम आ गया। ओके, सो दैट इज द बॉलिंगर बैंड। नाउ if we go to the next slide, you have the Fibonacci retracements and the retracements versus reversals. पहले हम इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। So what happens in case of a reversal and a retracement? Let's go to the whiteboard now. Finally, I'm using the whiteboard for this session. Okay, मान लो this is the like the level of resistance and a support है, ठीक है? ये resistance है, ये support है, and the market moves between that, ठीक है? So what will happen in case of a retracement? I'm talking about retracement. So like retracement में क्या होगा कि मार्केट बीच में ही होगी, ठीक है? इसको ब्रीच नहीं करेगी। अगर मार्केट नीचे हो गई एंड मार्केट यहां से चलते ही ऊपर, तो इट इज अ बुलिश रिट्रेसमेंट। और अगर मार्केट ऊपर चल रही है, वहां से मार्केट नीचे हो गई, इट्स अ बेयरिश रिट्रेसमेंट। बट मार्केट बीच में ही चलेगी, ठीक है? बट व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ रिवर्सल? मार्केट बीच में चल रही है बट इट विल लाइक ब्रेकआउट ऑल्सो, ब्रेकआउट का चांस होता है इन रिवर्सल। सो दैट्स ब्रेकआउट, एंड ब्रेकआउट नीचे की तरफ भी हो सकता है, इट कैन ब्रेक द सपोर्ट लेवल एज वेल। यहाँ से लाइक सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दिया। सो इन केस ऑफ रिट्रेसमेंट, मार्केट मूव्स बिटवीन द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, बट इन केस ऑफ रिवर्सल द मार्केट कैन ब्रेक द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मान लो मार्केट लाइक नीचे की तरफ चल रही है,
ठीक है, एंड यहाँ से मार्केट इतनी ऊपर चलेगी कि लाइक रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, इट्स अ बुलिश रिवर्सल, बुलिश रिवर्सल। बट अगर मार्केट बहुत ऊपर की तरफ चल रही है एकदम से नीचे चली गई एंड ब्रेकआउट कर दिया, इसको भी लाइक सपोर्ट को भी तोड़ दिया, इट्स अ बेयरिश रिवर्सल। ठीक है, एंड सेम हैपेंस विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिट्रेसमेंट। मार्केट लाइंस के बीच में अगर गिर रही है, ऊपर आ गई, बट इसको ब्रेक नहीं करेगी, इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगी, दैट्स अ बुलिश रिट्रेसमेंट। और अगर मार्केट नीचे की तरफ चल रही है, सॉरी ऊपर की तरफ चल रही है एंड नीचे चली गई, बट इस लाइन को ब्रेक नहीं करेगी, सपोर्ट को, दैट्स अ बेयरिश retracement. Okay, so this difference might be clear to you, should be clear to you right now. एंड फिबोनाची क्या होता है? फिबोनाची रिट्रेसमेंट, फिबोनाची में हम क्या करते हैं, वी हैव दिस इंडिकेटर हियर, दिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो लाइंस है ना बहुत सारी, तो इस पे जाओगे टॉप पे मिल जाएगा. So we try to join the lowest most point of the market or the stock to the highest point. Let's click on this first. Lowest point. I don't know why it is not working. Yeah, now it will. लोएस्ट पॉइंट जो था मार्केट का, ये इसको हमने हाईएस्ट पॉइंट से जोड़ दिया. ओके, एंड दीज पॉइंट्स 0.236, दीज आर ऑल द गोल्डन रेशियोज. अब गोल्डन रेशियोज की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी, मान के चलो दीज आर सर्टेन रेशियोज. यहाँ पे तुमको पता चल रहा है कि द मार्केट इज इन अ बुलिश ट्रेंड. ठीक है, बिकॉज ओवरऑल मार्केट बढ़ रही है. ठीक है, दीज रेशियोज हेल्प्स यू टू हैव अ स्टॉप लॉस. मतलब अगर तुमने इस पॉइंट पर खरीदा मार्केट को, मतलब 925 रुपीज पे खरीदा, तो अगर तुम चाहते हो कि तुमको लगता है कि अगर शेयर का प्राइस 850 गिर रहा है, अगर 837 भी गिर रहा है, मैं ठीक हूँ. अगर 767 भी गिर रहा है, मैं ठीक हूँ. ठीक है, इतना मैं लॉस में, आई कैन बेयर दैट लॉस सिंपली. बट अगर प्राइस 719 पे आ गया, जो ये लाइन है लाइक विच इज रिप्रेजेंटेड बाय 0.236, देन मैं शेयर्स को बेच दूंगा. सो दैट कैन बी माई फर्स्ट स्टॉप लॉस. अगर इस स्टॉप लॉस, अगर ये स्टॉप लॉस मेरे माइंड से निकल जाता है या मैं भूल जाता हूँ, आई कैन सेट अ सेकेंड स्टॉप लॉस, a third stop loss, a fourth stop loss, a fifth stop loss. So stop loss is basically if I have purchased a share at 100 rupees and मुझको लगता है कि उस शेयर पे बस मैं 30 रुपीज का लॉस में ज्यादा से ज्यादा मैं सह सकता हूँ. शेयर अगर 90 पे आ गया, ठीक है, हम देख लेंगे, हम वेट कर लेंगे. 80 पर आ गया, ठीक है, बट अगर 70 पे आ गया, मैं बेच दूंगा. So on the basis of this past market trend, it helps you to set a stop loss. First stop loss, second stop loss, third stop loss. And people also set the support level on the basis of that. It can be the first support level, the second support level, the third support level of Nifty. Okay. So like this helps you in that as well. So that is one thing of the Fibonacci retracement. Up next, the most interesting concept which people like the most, the candlesticks. तो हम थोड़ी बहुत कैंडल स्टिक्स के बारे में बात करेंगे. तो कैंडल स्टिक्स 1000 से नंबर, बट हम मेजर बात कर लेते हैं. सो व्हाट इज अ कैंडल स्टिक पैटर्न? इट अगेन शोज यू अ ट्रेंड ऑफ द मार्केट. सो पहले कैंडल स्टिक समझ लो. दिस ग्रीन पार्ट, इट इज अ बुलिश कैंडल स्टिक एंड द रेड वन इज अ बेयरिश कैंडल स्टिक. मतलब यहाँ पे यू शुड बाय द स्टॉक्स एंड यहाँ पे यू शुड सेल द स्टॉक्स. ठीक है, दिस इज द बॉडी ऑफ द कैंडल. This rectangular shape is the body of the candle. This is the open point, मतलब जहां पे स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ. सो इन केस ऑफ द बुलिश कैंडलस्टिक, यू मीन द प्राइस इज गोइंग टू राइज, राइट? एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगा. तो ओपन कम प्राइस पे हुआ, बट फाइनली जब मार्केट क्लोज हुई तो द प्राइस, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द मार्केट, ये जो स्मॉल स्टैंड्स हैं, एंड दीज आर कॉल्ड द विक्स ऑफ द कैंडल और द शैडो ऑफ द कैंडल. ठीक है, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट. ठीक है, सो ये हमारी बुलिश कैंडलस्टिक होगी एंड ये बेयरिश कैंडलस्टिक होगी. अगर बुलिश है तो प्राइस कम से स्टार्ट होगा बट क्लोज होगा हाई पे, बिकॉज वी आर ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द मार्केट. बट अगर बेयरिश है तो ओपन होगा ज्यादा पे एंड क्लोज होगा कम पे. दैट इज अ बेयरिश कैंडलस्टिक.
सो वी हैव अ दोजी. दोजी इज अगेन अ कैंडलस्टिक. तो यहाँ पर दोजी में क्या होता है कि वी डू नॉट नो कि मार्केट इज बुलिश और बेयरिश. हमको मार्केट का ट्रेंड पता नहीं चलता. ओके, इन केस ऑफ दोजी. In case of long leg doji, it is again a kind of a doji candle only. इसमें भी हमें मार्केट का ट्रेंड पता नहीं चलता, but we can predict. मान लो this lower part is longer than the upper part. So in this case, we can say that the bearish mood of the market is more. मतलब कि selling की tendency ज़्यादा है. But अगर upper part ज़्यादा होता, हम बोल सकते थे कि buying की tendency ज़्यादा है. ठीक है. Then you have the dragonfly candle. अब dragonfly ऊपर बंद हो रही है, मतलब इसका हाईएस्ट पॉइंट इज द क्लोजिंग पॉइंट. मतलब हाईएस्ट पॉइंट जो विक वाला पार्ट था उसका, ये वाला, इस पर ही लाइक मार्केट बंद हुई है. द हाईएस्ट पॉइंट इज द क्लोजेस्ट पॉइंट. इट इज अ बुलिश वन. एंड ग्रेवस्टोन इज द रिवर्स ऑफ द ड्रैगन फ्लाई दोजी. मतलब द लोएस्ट पॉइंट इज योर क्लोज पॉइंट, कि मार्केट कम पे बंद हुई है. नेक्स्ट इज द हैमर कैंडल. हैमर में क्या होता है, द मार्केट इज फॉलिंग. देखो, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, एकदम से यू विल विटनेस अ कैंडल ऑफ दिस पैटर्न, एंड इट्स अ बाइंग सिग्नल बिकॉज market is closing in the upper point. मतलब closing part of the market is in the high part. Okay, your high is very close, or your close is very close to the high part of the market. तो जब मार्केट गिर रही है एंड एकदम से यू सी दिस पैटर्न, मतलब इट इज अ बाइंग सिग्नल. इसी का उल्टा यू हैव द हैमर, सॉरी यू हैव द हैंगिंग मैन. अब हैंगिंग मैन में क्या है, जब मार्केट बढ़ रही है यू विल सी अ रेड सिग्नल. एंड इसमें क्या होगा, ये जो शॉर्ट लाइन है ना, लाइक दिस रेक्टेंगुलर पार्ट, अब तुम बोलोगे कि ये पार्ट तो ऊपर है ना, एंड इट शुड बी अ पॉजिटिव वन, बट द कलर इज रेड. ओके, बट द कलर इज रेड. अगेन, इन सम ऑफ द चार्ट्स द ग्रीन कैंडल्स माइट बी रिप्रेजेंटेड विद द व्हाइट कलर, एंड द रेड कैंडल्स दे माइट बी रिप्रेजेंटेड विद द ब्लैक कलर. ठीक है, तो ब्लैक वालों को हम बेयरिश बोलते हैं एंड व्हाइट वालों को हम बुलिश बोलते हैं. ठीक है, तो इस चीज का भी ध्यान रखना. बट यहाँ पे यू कैन सी दिस शॉर्ट विक अबव, this short wick above. So that's a hanging man. अब hanging man is at the end of an uptrend. जब uptrend होता है, you will see a red candlestick pattern like this. So that's a hanging man. And यहाँ से फिर bearish reversal हो जाती है market. मतलब the market starts to fall. ठीक है. Next you have the morning star and the evening star. Morning star, as the name suggests, a signal of positivity. ये red candle आएगी तुम्हारे पहले. Then you'll have a doji. दोजी का मतलब होगा कि तुमको पता नहीं है. इट्स अ न्यूट्रल दोजी, की मार्केट बढ़ेगी या गिरेगी. एंड इसके बाद यू विल सी अ बिग ग्रीन कैंडल. इट मींस द मार्केट इज अबाउट टू राइज. बट इन केस ऑफ इवनिंग स्टार इट्स अ बेयरिश सिग्नल. मार्केट पहले बढ़ रही थी, देन यू विल सी अ रेड न्यूट्रल दोजी, एंड देन अ रेड बेयरिश कैंडल. इट मींस मार्केट के गिरने का टाइम आ गया. सिंपल. ओके, so that was something about the candlestick patterns. अब candlestick patterns तुमको कहाँ से मिलेंगे, यहाँ देखो. यू हैव दिस नेम ऑफ रिलायंस, द सिंबल सर्च दिस, एंड यहाँ पे लाइन चार्ट है. तो अभी हमने ये लाइन चार्ट चूज करा है. वी कैन चूज इट टू बार. इसको मैं मंथली के बजाय टू इट डेली. तो यू कैन सी दिस बार चार्ट्स. सी, अब कैंडल चार्ट लाना हो तुम्हें, these are the candlesticks. See, like different types of candlesticks. The green one, जहाँ पे भी green आई है, okay, the market has risen. The green one are the bullish one. And नीचे तुम्हारा ये moving average indicator चल रहा है. So if you can combine this moving average convergence divergence with the candlestick pattern, best for the market. And साथ में तुम volumes को भी देखते रहो. अभी देखो, it's a long leg doji. अगर तुम इसको देखो, it's long legged, and the lower leg is greater than the upper leg. ये देखो, अब और क्लियर दिखेगा. ये देखो, the lower leg is bigger than the upper leg.
and these candles, a big red candle, market गिरना start हो गई. So there's different types of candlestick patterns you can see. ये bearish आया, the market has started to fall, and जैसे ही green आया, the market has risen. ये red जैसे ही इतना बड़ा आया red, okay, the market started to fall, and जैसे ही green आया, the market started to rise. These things you should know. Okay, so this is the candlestick pattern. And इसमें देखो, here you have chosen Reliance, you can change your company. ठीक है, अगर यहाँ पे तुम्हें मान लो कि नेस्ले लेना है, तो यू कैन टाइप नेस्ले हेयर, नेस्ले इंडिया, तो नेस्ले का चार्ट आ जाएगा. ओके, एंड दिस इज अ डेली चार्ट. यू कैन चेंज दिस चार्ट टू मिनट्स, टू मंथ्स, टू ईयर्स. ट्रेडर्स दे यूजुअली डू इट इन मिनट्स. ठीक है, दे टेंड टू सी द मूवमेंट्स इन मिनट्स, की 5 मिनट्स के मूवमेंट्स या 15 मिनट के मूवमेंट, 30 मिनट के मूवमेंट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे सी मतलब कि व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल. यहाँ से तुम पैटर्न्स ले सकते हो, बार, कैंडल्स, हॉलो कैंडल तुम्हारा आ गया. So like different types, area chart. So this is same as a line chart, but नीचे बस area fill up हो जाता है. Okay. From here you can have the indicators. From here you can compare like one company with the other company. From here you have the financials. अगर Nestle के financials देखने हो, balance sheet, income statement का amount, cash flow का amount कुछ देखना हो, so that you can get to know. Okay. Like some features would be the paid one for this, but more or less to analyze the market and to undertake the purpose of technical analysis. Like, so this is perfect for that. Okay. So this was all about technical analysis that we tried to understand in today's session. So this was the complete of technical analysis in very brief, and we talked about like most of the important indicators as well. And now we'll meet on Monday with a session again on fundamental analysis, but not the basics of fundamental analysis, advanced fundamental analysis. Okay.